सैयद शासन, तिवारी उत्तम कुमार, प्रभात साहू। आप सभी लोगों का स्वागत है इस मंच के अंदर, जिसका नाम है डिजिटल खेती और ब्रांडिंग। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आपका एक विशेष विधि के द्वारा। डिजिटल सबको खेती आवाज आ एवं रही है? ब्रांड के इस सत्र में मैं यस। आप सभी आ का रही है। हार्दिक आ अभिनंदन रही है। करता हूँ। हमारा जीवन सदैव समृद्धि एवं प्रगति को प्राप्त करता रहे, इसके लिए जितने भी गुण हमारे पास प्रकृति में दिए हैं, हम उन सभी का भरपूर उपयोग कर सके, यही इस मंच का विशेष उद्देश्य है। कुछ बहुत ही सरल प्रक्रियाओं के द्वारा जो आप पहले से ही करते आ रहे हैं, उनको एक नए तरीके से दोहराते हुए हम मंच पर एक साथ करेंगे और जीवन को सदैव आनंद से जीने का एक नया आयाम प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। I heartily congratulate all of you in this session of digital farming and branding. The special purpose of this forum is that we can make full use of all the qualities that nature has given us, so that our life always achieves prosperity and progress. Through some very simple procedures, repeating in a new way what you are already doing. We will do it together on stage and get a new dimension of living life happily ever after. Thank you. ডিজিটাল ফার্মিং এবং ব্র্যান্ড বিল্ডিং এর এই অধিবেশনে আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই ফোরামের বিশেষ উদ্দেশ্য হল প্রকৃতি আমাদেরকে যে সমস্ত গুণাবলী দিয়েছে আমরা তার পূর্ণ ব্যবহার করতে পারি, যাতে আমাদের জীবন সর্বদা সমৃদ্ধি এবং উন্নতি লাভ করে। কিছু খুব সহজ পদ্ধতির মাধ্যমে আপনি ইতিমধ্যে যা করছেন তা একটি নতুন উপায় পুনরাবৃত্তি করুন। আমরা একসাথে মঞ্চে এটি করব এবং সুখীভাবে জীবনযাপনের একটি নতুন মাত্রা পাব। ধন্যবাদ। ડિજિટલ ફાર્મિંગ અને બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગના આ સત્રમાં હું તમને બધાને હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપું છું. આ મંચનો વિશેષ હેતુ એ છે કે કુદરતે આપણને આપેલા તમામ ગુણોનો આપણે પૂરો ઉપયોગ કરી શકીએ, જેથી આપણું જીવન હંમેશા સમૃદ્ધિ અને પ્રગતિની પ્રાપ્તિ કરે. કેટલીક ખૂબ જ સરળ પ્રક્રિયાઓ દ્વારા તમે જે કરી રહ્યા છો તેને નવી રીતે પુનરાવર્તિત કરીને અમે તેને એકસાથે સ્ટેજ પર કરીશું અને જીવનને સુખેથી જીવવાનો નવો પરિમાણ મેળવીશું. આભાર. डिजिटल फार्मिंग आणि ब्रँड बिल्डिंगच्या या सत्रात मी तुम्हा सर्वांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. निसर्गाने आपल्याला दिलेल्या सर्व गुणांचा आपण पुरेपूर वापर करू शकतो, जेणेकरून आपल्या जीवनात सदैव समृद्धी आणि प्रगती व्हावी हा या मंचाचा विशेष उद्देश आहे. काही अतिशय सोप्या प्रक्रियेद्वारे तुम्ही आधीच करत असलेल्या गोष्टींची नव्याने पुनरावृत्ती करून आम्ही ते एकत्र स्टेजवर करू आणि आनंदाने जीवन जगण्याचा एक नवीन आयाम मिळवू. धन्यवाद. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸರಳವಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುವ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ధన్యవాదಗಳು. డిజిటల్ వ్యవసాయం మరియు బ్రాండ్ బిల్డింగ్ యొక్క ఈ సెషన్లో మీ అందరినీ నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను. ఈ ఫోరం యొక్క ప్రత్యేక ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే, ప్రకృతి మనకు అందించిన అన్ని లక్షణాలను మనం పూర్తిగా ఉపయోగించుకోవచ్చు, తద్వారా మన జీవితం ఎల్లప్పుడూ శ్రేయస్సు మరియు పురోగతిని సాధిస్తుంది.
కొన్ని చాలా సరళమైన విధానాల ద్వారా మీరు ఇప్పటికే చేస్తున్న పనిని కొత్త మార్గంలో పునరావృతం చేస్తూ మేము వేదికపై కలిసి చేస్తాము మరియు జీవితాంతం సంతోషంగా జీవించే కొత్త కోణాన్ని పొందుతాము. ధన్యవాదాలు. डिजिटल फार्मिंग और ब्रांड बिल्डिंग के इस सेशन में मैं आप सबको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। इस फोरम का खास मकसद ये है कि हम कुदरत की अता करदा तमाम खूबियों से भरपूर इस्तिफादा कर सकें, ताकि हमारी जिंदगी हमेशा खुशहाली और तरक्की की मंजिल हासिल करे। कुछ इंतहाई आसान तरीकाकार के जरिए जो कुछ आप पहले से कर रहे हैं इसे एक नए अंदाज में दोहराते हुए हम इसे स्टेज पर मिलकर करेंगे और जिंदगी को खुशी से गुजारने की एक आप सभी लोगों ने इस कोर्स को देखा, प्रारंभ किया। मैं पुनः अपनी हृदय से श्री बालाजी महाराज को याद करते हुए उनकी अनुकंपा के साथ आपको सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं सभी लोगों का इस मंच के ऊपर। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंच को मैंने डिजिटल खेती नाम क्यों दिया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो मैं आपके साथ साझा करता हूं। मैं अभी आपको अच्छा लगेगा सुनकर जब मैं आपके सामने चीज साझा करूंगा। ये मेरा डिजिटल खेती और ब्रांडिंग का एक प्लेटफॉर्म है जो आप सभी को इसके लिए आज से ओपन हो जाएगा। इसके अंदर ये मैंने कंप्लीट वो चीज लिखी हुई है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, लेकिन इस कोर्स को मैंने एक साथ 8 भाषाओं में बनाया है। 8 भाषाओं में, जैसे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारे इस मंच का हिंदी में विवरण शुरू हो जाएगा। मेरे सभी मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आपका जीवन सदैव आनंद से भगा रहे। प्रत्येक वह वस्तु जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं आपको वह सरलता से प्राप्त हो सके एवं जीवन में सदैव आप अपने लक्ष्य के लिए ही पूरे उत्साह के साथ कार्य करते रहें। मैं सर्वशक्तिमान श्री बालाजी महाराज से आपके लिए ये प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, जैन तीर्थंकर द्वितीय नहीं 11वीं सदी में मानव के लिए एक पंक्ति कही थी जो इस प्रकार है। मानव को अपने जीवन में केवल 2 ही कार्य करनी चाहिए। पहला, या तो वह कृषि करें या वह ऋषि बने। ये पंक्ति पढ़ने के उपरांत मैंने एक बहुत लंबे समय तक इस पर शोध किया और जब मुझे इसका अर्थ समझ आया तो वह न केवल अर्थ था अपितु एक समाधान रूपे मार्ग भी प्रस्तुत हो गया। मित्रों, कल्पना करें कि आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसे आप पूरे उत्साह के साथ करें, तो इसके लिए आपके समक्ष कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। क्योंकि मैं भी आप सभी के समान ही हूँ, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि निम्न बिंदु हम सभी को अत्यधिक चिंताग्रस्त करते हैं। 1 शारीरिक स्वास्थ्य, 2 समय की कमी, 3 अच्छी शिक्षा का अभाव, 4 उच्च शिक्षा के लिए कठिन संघर्ष, 5 समाज में होता बदलाव, 6 स्वतंत्र विचारों की कमी, 7 लोगों की अत्यधिक हमसे अपेक्षाएं, 8 समाज में सही रूप से अपनी पहचान स्थापित करना, 9 समाज के समक्ष अपने को प्रदर्शित करना, 10 मानसिक स्वतंत्रता, 11 कहीं पर भी यात्रा करने की स्वतंत्रता, 12 निष्पक्ष भाव से जीने की स्वतंत्रता। ऐसे बहुत सारे और भी बिंदु हैं जो शायद आपके साथ भी इसी प्रकार से संबंध रखते होंगे, जो संभवतः मैं आपके साथ साझा न कर पाऊं। इसके पीछे का मुख्य कारण आपके साथ चल रही समय, काल एवं परिस्थितियों का एक संग्रह है। मित्रों, जब मुझे जैन तीर्थंकर की पंक्ति का अर्थ समझ आया तो मैंने उसके लिए विशेष तौर पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। कुछ वर्ष कार्य करने के उपरांत मैं एक ऐसे समाधान की ओर खुद को देख पाया जो न केवल मैं अपितु आप सभी बहुत ही सरलता से प्राप्त कर सकते हैं।
अब पहला बिंदु आता है कृषि करना। परंतु इसके लिए तो हमें भूमि चाहिए एवं मिट्टी की परख चाहिए और पता नहीं कितने गुणों को सीखने की आवश्यकता है, जो संभवतः शहरीकरण होने के कारण मैं तो नहीं जानता। मुझको तो गमले में पौधे लगाने भी ठीक से नहीं आते, वह भी मैं माली की सहायता लेता हूँ। दूसरा बिंदु ऋषि बनना, अर्थात अपने कार्य में इतने उत्साह के साथ जुड़ जाना कि जैसे वह हमारे लिए ही बना है, उसमें प्रत्येक दिशा में कार्य करते रहना। ऋषि वास्तव में उस व्यक्ति को कहा जाता है जो तरह तरह के प्रयोग अपने ही कार्य में करता रहता है एवं स्वयं की प्रसन्नता के लिए सभी कार्य करता है। समाज स्वाभाविक ही उससे लाभान्वित भी होता रहता है। जिस पुस्तक में मैंने इस पंक्ति को पढ़ा था वह सन 1956 में लिखी गई थी। उसी में एक वाक्य और भी लिखा हुआ था जो कुछ इस प्रकार था। आने वाला समय मानव नहीं अपितु मशीन आधारित होगा। मानव किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से करने में सक्षम नहीं रह पाएगा एवं वह अपनी सुविधा के लिए उत्कृष्ट उपकरणों का निर्माण कर लेगा और अपने जीवन को उनकी सहायता से सरल भी बना लेगा। यदि हम वर्तमान समय को देखते हैं, इसको समझना कोई मुश्किल नहीं कि आज चारों ओर मशीनें ही हमारा साथ दे रही हैं, जिसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मशीनें भावनात्मक रूप से कोई भी कार्य नहीं करती हैं। जिस प्रकार एक यथार्थवादी जीवन होना चाहिए, मशीनें भी उसी प्रकार से अपना परिणाम देती हैं। किंतु मशीनीकरण होने के कारण आज हमारे समाज में एक बहुसंख्यक स्तर पर लोग अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष के कारण उनका व्यक्तिगत जीवन जिस सबसे बड़ी चिंता से ग्रस्त रहता है, उसे आर्थिक स्वतंत्रता कहा जा सकता है। विश्व में लगभग 70% लोग अपने कार्य को केवल और केवल अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही करते हैं। 20% लोग थोड़ा सा अच्छे स्तर का जीवन व्यतीत करते हैं। बाकी बचे हुए 10% लोगों में भी केवल 2 से 3% लोग हैं वास्तविक स्तर पर जीवन का आनंद ले रहे हैं। विश्वव्यापी एक सर्वेक्षण के द्वारा पता चला है कि विश्व में 5% लोग 95% संसाधनों का सरलता से उपयोग कर सकते हैं एवं 5% की धनराशि 95% लोगों के मध्य साझा की जाती है। परंतु अब आप निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि मैं आपके समक्ष एक ऐसे विकल्प को रखने जा रहा हूं जिसमें आप न केवल कृषि कर पाएंगे अपितु एक उच्च कोटि के ऋषि भी बन पाएंगे। आपको केवल और केवल कुछ समय प्रति सप्ताह मेरे साथ बिताना होगा। डॉक्टर ललित अरोड़ा के W अकेडमी के संस्थापक हैं। मैं जब से उनके सानिध्य में उनकी अकेडमी के साथ जुड़ा हूँ, मेरे जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आ गया है। उन्हीं के मार्गदर्शन एवं ध्वज तले मैं इस नए अध्याय का प्रारंभ कर रहा हूँ। इस अध्याय का विषय डिजिटल खेती एवं नाम है। यह अध्याय कई चरणों में विभाजित किया गया है जो कि के W अकेडमी की छत्रछाया में आप सभी लोग सीखेंगे। यदि आप इस संस्था से पहले से ही जुड़े हुए हैं एवं आपका स्तर डायमंड का है, तो आपके लिए ये पूरा विषय निःशुल्क है। हिंदी विषय को रखा है। अब आपके समक्ष ये सारा विषय इंग्लिश में, बंगाली में, गुजराती में, मराठी में, कन्नड़ में, तेलुगु में और उर्दू में भी उपलब्ध है। ये 8 वो भाषाएं हैं जिसमें आपको कोर्स कंटेंट भी दिया जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक और चीज साझा करना चाहूंगा। पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा कि अभी तक जो आप लोगों ने जो देखा है, जितना भी पार्ट आपने देखा है, आपको इसमें कैसा अनुभव हो रहा है?
आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं मेरे को। बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके समक्ष एक फॉर्म रखने जा रहा हूं। ये फॉर्म जो है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसके माध्यम से ये जान पाएंगे कि आपका जो जीवन है वास्तविक वो चल कैसे रहा है। मैं अभी चैट बॉक्स में फॉर्म को डाल रहा हूं, आप लोग कृपया इसे भरें। केवल 3 ही एंट्रीज हैं इसके अंदर, केवल 3 एंट्रीज हैं। मैं चाहूंगा आप इसको भरें। व्हाट इज योर मो यदि आप आपके अपना लिए कैमरा ऑन कर सके, जिसको संभव हो तो अच्छा लगेगा मेरे को। दैनिक जरूरतों को पूरा करना, आपके पास जो है उससे ज्यादा कुछ और चाहिए। नीड समथिंग मोर देन व्हाट यू स्वागत है शिवांगी बेटा इमेजिन। आपका। क्या सपने। आशा करता हूँ फॉर्म अगर भर दे तो आप डन लिख दिया प्लीज। अगर आप फॉर्म भर दे डन लिख दिया प्लीज, ताकि मैं एक आपको इसी की एक आउटपुट दिखाऊंगा। केवल डन लिखना है आपको। शांति, खुशी, सुकून चाहिए और आराम से, कोई दिक्कत नहीं, भर सकते हैं आराम से। शांति तो ये लगेगा। आप अपने प्रभात जीवन जी में थैंक यू, किस आपने भर दिया फॉर्म, थैंक यू सो मच। कोई भी काम जो आपको अच्छा पैसा देता है, मानसिक संतुष्टि दे, एक ऐसा काम जो आपके इस कौशल का सम्मान करता है और जिस काम को आपने अपने पैशन से करना चाहते हैं, इस काम को आप अपने पैशन से। मूल रूप से इसके अंदर जो विकल्प दे रखे हैं एक वो विकल्प ऐसा हमारे काम जीवन से बहुत संबंध रखते हैं। एक ऐसा काम जो आपके कौशल का सम्मान करता है, ऐसा काम जो आपको मानसिक संतुष्टि दे। मानसिक मानसिक काम को आप अपने पैशन। प्रभात जी धन्यवाद। उसके बाद ये भरा है अपना एक और फॉर्म, 3 फॉर्म भरे जा चुके हैं। एक्चुअली थोड़ा मुझे 4 फॉर्म भर दिए गए हैं। अब आपके सामने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं शेयर करता हूँ, जो बेसिकली आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ मैं वो शेयर करने जा रहा हूँ आपके सामने। जो आपने रिस्पांस दिया है उसी के आधार पर अब मैं आपको वो शीट दिखाने जा रहा हूँ जो कि रिस्पांस शीट कही जाती है। ये देखिए, हमारा पहला प्रश्न जो था, थोड़ा सा बड़ा भी करता हूँ हल्का सा, आपके लिए क्या ज्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग सब नोन लोग हैं, इतने लोगों के लिए ड्रीम इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न कि हमारे लिए इन सभी चीजों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। तो धन ने किसी को फोकस नहीं किया, लेकिन 3 पे सभी लोगों का फोकस रहा है। और लास्ट आता है हमारा व्यवसाय को लेकर, तो मैक्सिमम लोगों ने उसी पॉइंट पे क्लिक किया है, क्योंकि मैं जानता हूं सभी लोग हमारे डायमंड काउंसिल के हैं, तो आपके लिए ये वाला पोर्शन ही महत्वपूर्ण है। यस जी, तो अभी ये जो आपके सामने ओवरऑल जो पिक्चर मैंने रखी है, इसके पीछे का लक्ष्य बता देता हूं मैं आपको। हम लोग का जो पर्पस होना चाहिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम चाहते क्या है अपने जीवन के अंदर। हम लोग अपने जीवन में वास्तव में चाहते क्या है। तो अब मैं आपको आगे थोड़ा इसके बारे में बता दूं, अपने सेशन के बारे में। सामने मल्टीपल लैंग्वेजेस आपके सामने हैं,
अब यहाँ पर छोटी सी चीज और है कि KW एकेडमी के बारे में यदि आपको जानना, इस पे क्लिक करते ही आपको KW एकेडमी का वो कंप्लीट सारांश मिल जाएगा जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए हमारी KW एकेडमी है, पूरा इसका डिटेल दे रखा है। ठीक है, क्योंकि आप सभी डायमंड्स हैं तो आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं कोर्स आप कैसे करेंगे। आप लोगों के लिए ये कोर्स टोटली फ्री है। लेकिन बता देता हूँ इस कोर्स के अंदर जो एक्चुअल जो उसकी कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा रखी गई है, दैट इज 3 लाख पर 3 इयर्स। लेकिन इस 3 लाख रुपए को भी आप बहुत सरलता से पे कर सकते हैं जस्ट बाय क्लिकिंग इन BOP। जैसे आप BOP पे क्लिक करेंगे मतलब आप KW एकेडमी के जो सेशन है ब्लू ओशन प्रोस्पेक्टिंग, उस पे आप आराम से चले जाएंगे और आप इस पर्टिकुलर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है इसके अंदर जो मैंने आपसे अभी तक शेयर जो किया था, ये हमारा है कोर्स कंटेंट। ये पूरा कोर्स कंटेंट आपके सामने है इस समय कि मैं आपको, ये फर्स्ट मंथ का है। यहाँ पर कोई भी ऐसा बिंदु आपको नहीं मिलेगा जो आपके जीवन से संबंधित ना हो। ये पूरा कोर्स कंटेंट बहुत ही इसमें मतलब अनुभव के आधार पर, क्योंकि मैं खुद एक प्रोफेसर लेवल पे काम कर चुका हूं और बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ा चुका हूं, तो उसके आधार पर इस पूरे कोर्स को मैंने डिजाइन किया हुआ है। के ग्रुप पे हैं। वापस हम होम पर आते हैं। अब क्योंकि आप सभी लोग इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ चुके हैं, अब मैं ये बताने जा रहा हूं आपके साथ कि डिजिटल खेती मैंने इसका नाम क्यों रखा है। डिजिटल खेती के पीछे का जो मेरा उद्देश्य है वो कुछ इस प्रकार है कि जो हमारा जीवन है, हम अपने जीवन में ये चाहते हैं कि हमारे को इनकम सोर्स जो होता है, इसको इनकम कहते हैं, उसके लिए कभी काम ना करना पड़े। एक किसान जो है जो खेती कर रहा है वो खेती ही करे बिना ये सोचे कि फसल अच्छी होगी या खराब होगी। अध्यापक अपना अध्ययन क्षेत्र में रहे, रिसर्च करे अपने पर्टिकुलर फील्ड में जाकर, ये ना सोचे कि सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोई भी व्यक्ति जो जिस भी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है उसको इस बात को सोचने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहेगी कि वो उस प्रोफेशन में काम करे या ना करे। नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि आज हम जिस सिस्टम से जुड़े हुए, हर व्यक्ति जो किसी भी अपने एम्प्लॉयर के पास जाता है काम करने के लिए, एक मानसिक तनाव में रहता है कि जॉब छूट गई तो, कि सैलरी ना मिली तो, कहीं पेंडेमिक आ गया तो, कहीं ये कहीं ये। तो डिजिटल खेती का मतलब कुछ ऐसी बातें सिखाई जाएंगी आपको इसके अंदर, पूरे सत्र के अंदर, कि आप लोग जो हैं ये समझ पाएंगे कि हम कहाँ पर सही हैं और कहाँ पे गलत है। एक कहावत है, अगर आप सुनिए, एक कहावत, एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है कि आदमी का दिमाग और पैराशूट तभी काम करता है जब वो ओपन हो जाए। हमारा ब्रेन ओपन ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम में से जितने भी लोग हैं मैक्सिमम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिसमें एक प्रश्न आता है लीड जनरेशन। तो आपको मैं आज एक बहुत बड़ी चीज सिखाने जा रहा हूं, वो ये है कि यदि आप लोग कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी के लिए या उसके प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, तो आप नेटवर्क इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे। आप या तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं या फिर आप डायरेक्ट सेल्स में काम कर रहे हैं। डॉक्टर ललित अरोड़ा ने हमको कई बार सिखाया है, हम जानते भी हैं लीडरशिप किसे कहा जाता है। हम लीडरशिप बन रहे हैं, वी आर द लीडर्स फॉर द फ्यूचर। तो ये इस कोर्स का उद्देश्य ही यही है कि आपके समक्ष उन चीजों को लाया जा सके और समझाया जा सके जो एक्चुअल में आपके लिए आवश्यक है। तो ओवरऑल जो पिक्चर है, आप जब इस साइट पर जाएंगे, मैं एक बार दोबारा साइट पर जाकर आपको चीज दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर इसके अंदर ये तो आप जब एकदम स्ट्रेट डाउन पर जाएंगे तो ये फॉर्म आपको भरना आवश्यक है। यहाँ पर चाहे आप किसी भी स्तर पे कहीं पर भी काम करें, इस फॉर्म को भरेंगे। इसमें कुछ ऐसी एंट्री, भरपूर एक भरा पूरा फॉर्म है ये। आप कहेंगे तो आपको इस फॉर्म को मैं दिखा भी देता हूँ एक बार। जैसे आप क्लिक करेंगे ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म के अंदर आपको वो सारी एंट्रीज मिलेंगी। जैसे ये पहला कॉलम जो हमारा है, किसके लिए है, आपका लेवल क्या है। ठीक है, अब ये आपको एंट्रीज भरनी ही है सारी। अगर एंट्री भी कम होगी तो भी इस कोर्स के अंदर मैं किसी को भी एंटरटेन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे कोर्स के लिए इस एंट्री का पता होना बहुत आवश्यक है। फाइन,
तो डिजिटल खेती पे वापस हम लौट कर आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। तो डिजिटल खेती जो है, हमको ये बताना चाह रही, ये कहना चाह रही है डिजिटल खेती कि हम अपने सपनों को नहीं, अपने इंटरेस्ट के लिए जीना सीखें। हमारा इंटरेस्ट कुछ होगा ना। एक स्टूडेंट है हमारे साथ, 2-3 स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं इस समय। जो स्टूडेंट है वो अपनी पढ़ाई को लेकर इसलिए चिंतित रहता है, रस ही नहीं मिलता उसको, कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता उसके अंदर, पढ़ क्यों रहा हूँ, कर क्यों रहा हूँ मैं ये। अगर उसको ये बताया जाए बेटा आप केवल पढ़ो, केवल पढ़ाई पर फोकस करो, आपको ये नहीं सोचना करियर आपका कैसा बनेगा, तो उसका ध्यान ज्यादा लगेगा। क्योंकि अध्यापक भी पीड़ित है तो बच्चे तो पीड़ित ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अब जैसे परसों से स्कूल खुल जाएंगे, मंडे से, अब एक ऐसा वातावरण क्रिएट हो जाएगा कि केओस हो रहा है, भाग रहे हैं सब लोग, भाग रहे हैं सब लोग, भाग रहे हैं। क्यों? सब लोग लगता है कि कुछ छूट ना जाए, कुछ छूट ना जाए। नहीं, हमको अब उस चीज से अलग हटना है। हम लोगों के साथ जो प्राचीन परंपराएं जो काम करती थी, उसका मेन उद्देश्य ये था, उस प्राचीन परंपराओं का, कि हम लोग अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते थे। 1820 तक भारत में ये सिस्टम था कि हम लोग धन को तोलते थे, क्योंकि जो धन होता था सोने और चांदी के सिक्कों में होता था। 1920 में 1 रुपया $1 के बराबर था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, वो कौन सी चीज थी जो आज 1 रुपया जो गिरकर $1 से इतना नीचे आ गया, 87 रुपए का इस समय $1 चल रहा है। कारण क्या है? हम लोग अपने मस्तिष्क का उपयोग करना भूल चुके हैं। अब कैसे उपयोग करेंगे? बहुत सिंपल सिंपल मेथड्स हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री को, जैसे आप सब लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आपको मैं सिखा भी दूंगा कैसे इसमें जो मैंने टेक्निक डेवलप की है, ये मेरी 20 साल की तपस्या से टेक्निक डेवलप की है, जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा इस कोर्स के माध्यम से। डायमंड को ये मैं कोर्स फ्री इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मेरे को डायमंड से बहुत प्रेम है। कारण क्या है? डायमंड अगर अच्छा काम कर जाएंगे तो KW एकेडमी बहुत अच्छा काम कर जाएगी, और KW एकेडमी की ग्रोथ हमारी ग्रोथ है। हम फ्यूचर में बहुत अच्छा लेवल पे काम कर पाएंगे। तो अंत के 5 मिनट आपके साथ और मैं शेयर करूंगा। यदि आप कुछ कहना चाहें कह सकते हैं, मैं और आपसे भी कुछ नहीं कहना चाहूंगा। और ये जो भी आपके साइट थी आपके सामने ओपन हो जाएगी, आपके सबसे शेयर कर दूंगा साइट को मैं। खाली वीडियो आप खुद देख सकते, सुन सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं मेरे से आप, प्लीज। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? अभी तक कोर्स जो शेयर किया अच्छा लगा आप लोगों को? यस यस। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग ना, आपके समय लिंक शेयर, जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं अभी, इन सभी से मैं लिंक, और सबसे मैं किसी से लिंक शेयर नहीं करूंगा। आप लोगों को यहाँ पर आए, लिंक शेयर करूंगा मैं, उसका फॉर्म जरूर भरिएगा। आपको पता रहे कि कहाँ पे हम लोगों को क्या करना है। सेशन कैसे होगा, मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, वहां पे आप लोग जुड़ जाएंगे, और जो भी डिटेल हो वहीं पे शेयर करूंगा। मैं सबसे ओपन नहीं रहूंगा इसके अंदर। कोर्स का कोई भी कंटेंट ओपन नहीं करूंगा मैं। रिकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी। अगर आप इसके पार्ट नहीं है, पार्ट है, आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी। आपकी जिस भाषा में आपको अच्छा लगता है, बंगाली में, मराठी में, जो 8 भाषाएं मैंने, जिसमें आपको अच्छा लगता है, आप यदि मेरे को शेयर कर देंगे, उसी भाषा में कंटेंट आपको दिया जाएगा। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके, मैं जानता हूँ, बट आप लोगों की खुशी मेरी खुशी है। तो प्लीज बताएं, ताकि मैं सेशन को फिर एंड कर सकूं धन्यवाद कहते हुए आप लोगों को। एनीथिंग इफ यू वांट टू से? इतनी इतनी देर मत कीजिए आरके तिवारी जी, जल्दी भेजिए ना। सर बस थोड़ा रुक जाइए, आपको मिल जाएगा। जल्दी भेजिए। ना सर थोड़ा प्लीज सर, मुझे उसके टेक्निकल कुछ काम करना पड़ता, तब लिंक भेजूंगा आपके साथ में। नीड नॉट वरी। कोई बात नहीं सर, एक्चुअली आई एम वेरी एक्साइटेड टू लिसन एंड सी योर वीडियो। थैंक यू सो मच। अब आप ये देखिए, मैंने अपने मित्रों को सबके साथ शेयर किया। मुझे पता था बहुत कम लोग आएंगे इसके, तो मैं जानता था इस बात को लेकर, बट आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग आए। आपने सम्मान किया, अपने भाई का सम्मान किया आपने। ऐसे कैसे बोल रहे हो? मैं तो देखो, मैं आपका मतलब आज संक्रांत था, नहीं मैं जानता हूँ बनाना तो करके सारा काम करके अभी तो रोटी नहीं बनाई हूँ। लड़का फोन किया खाना बना लेना मम्मी जी। तो अभी मैं वो आई तो फिर 8 बजे का याद आ गया, तो मैं बोली चलो अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊंगी। अभी वो फोन किया था तो मैं बोली खाना बाद में बनाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो अलार्म लगाई थी आरके तिवारी जी। थैंक यू सो मच प्रभास सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
और मेरा 2 मीटिंग था, मीटिंग खत्म करके फिर घर आया तो घर में अलार्म लगा था, अच्छा, मैं एक बात फिर आपको और मैंने बताता तैयार हो हूँ, गया कि एक चीज और चलो। बताता हूँ मैं। एक इसका जो कोर्स होगा उसका एक ऑफिशियल टाइम होगा जो कंपलसरी होगा, एक ऑप्शनल होगा जो कंपलसरी नहीं हो सकता, आप आओ चाहे ना आओ। जो ऑप्शनल होगा उसकी वीडियो शेयर करूंगा, कंपलसरी की वीडियो शेयर मैं नहीं करूंगा किसी के साथ। अगर आप अटेंड किया, आपके अटेंडेंस रोज लगी, अटेंडेंस आप अटेंडेंस आपकी ओके है, कोर्स मिल जाएगा आपको। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि सिखाना है अब आप लोगों वो को, एक सेशन नई कब दुनिया रखने वाले दिखाना हैं है। सर? सर सही है आप सर। ये जो सेशन आप रखेंगे तो कब रखेंगे आप, किस डे सर पर? आपको डिटेल पूरा मिल जाएगा, वैसे बता देता हूँ मैं। ऑफिशियली 8 से लेके 9 के बीच में मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को रहेगा ये सेशन। 3 दिन रहेगा क्या? 3 दिन रहेगा सेशन, ये केवल 3 दिन। बृहस्पतिवार को तो सर कितने का दिन तक? माराथन सेशन रहता है ना, माराथन नहीं तो चैलेंज। उससे पहले हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कितने मेरे दिन पास तक ऑप्शन रहेगा नहीं, सर मेरे कोई ये? ऑप्शन नहीं है, इसके लिए ऑप्शन कोई नहीं मेरे पास, मैं कुछ कर सकता नहीं उसके लिए। कितने दिन तक रहेगा ये सर ये? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूस रहेगा क्या? जी सर हमारी भी मीटिंग होती है ना, 8 से शुरू होता सर, है तो आपको हमारी आपके लिए छूट है, कोई दिक्कत नहीं है, छूट है आपके लिए। ठीक है ठीक है। सही सो बात। अगेन थैंक यू सो मच। मैं सेशन को यहीं पे अंत करना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच। Thank you सर so much. Thank you, sir. वेलकम बेटा।